Hello students, today we'll start a new chapter and name of the chapter is Mechanical Properties of Fluids. Chapter का नाम है Mechanical Properties of Fluids. So let us start this chapter. To begin with, what is fluid? Fluid का मतलब क्या होता है? तो fluid is a substance that can flow. Substance which can flow from one point to another point is called fluids. Liquid can flow from one point to another point. Even gases can flow from one point to another point, but solid cannot flow. Solid can move from one point to another point, but solid cannot flow. So fluid includes liquids and gases. Fluids का मतलब liquids and gases combined. तो चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का मतलब यहां पे हमको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस स्टडी करना है. टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमको इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टडी करना है. हम लोग गैसेस के प्रॉपर्टी नहीं स्टडी करेंगे. We'll be studying mechanical properties of liquids. What are the important characteristics of fluids? Fluids के special characteristics क्या होंगे? Number one, in fluids, atoms or molecules are arranged in a random manner. फ्लूइड्स में हमारा लिक्विड्स एंड गैसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक रैंडम अरेंजमेंट होता है. बट इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट, दे हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. बट फ्लूइड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, दे आर अरेंज्ड रैंडमली. प्रॉपर्टी नंबर 2, fluid cannot withstand tangential, also called shearing stress. The fluid cannot withstand shearing stress, also called tangential stress. So it begins to flow when a shearing stress is applied. अभी डायग्राम देखो. इस डायग्राम में ABCD होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस. ABCD is a cross section of a substance. And any substance can be supposed to be made of number of layers. Any substance, फिर solid हो, liquid हो या gaseous state में हो, substance can be supposed to be made of number of layers, and these layers are arranged one above the other. Tangential या shearing stress प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग substance का जो lower layer है या bottom layer है उसको रखेंगे fixed. तो ये जो सब्सटेंस है जिसका एक क्रॉस सेक्शन है एबीसीडी, इसका बॉटम लेयर को हमने रखा है फिक्स्ड. का मतलब ये जो लेयर है एबी उसको रखो फिक्स्ड. एंड अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स. ऐसे फोर्स अप्लाई करो. टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड टू द टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स टू द अपर लेयर. तो ये जो अपर लेयर है इसको हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना है. तो वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स. ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे टू द अपर लेयर. उससे क्या होगा, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई होगा. एंड अगर ये सॉलिड होगा, अगर ये सब्सटेंस सॉलिड होगा तो उसका शेप चेंज होगा. ड्यू टू दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर ये सब्सटेंस सॉलिड होगा तो उसका शेप चेंज होगा. इसका इनिशियल शेप था ABCD, बट टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका शेप हो गया ABC'D'. सो देयर इज अ चेंज इन शेप. सॉलिड कैन विथस्टैंड दिस टाइप ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस. अगर ये सॉलिड होता तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस को विथस्टैंड करता. टेंजेंशियल स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड टू अ सॉलिड. And due to tangential stress, also called shearing stress, applied to a solid, there is a change in shape of the solid. And tangential stress, also called shear stress, is force upon
area, tangential force upon area of the upper layer, area of the layer on which the force is applied. So solid can withstand this type of tangential stress, but fluids में tangential stress cannot be applied. Because liquids and gases में अगर आप ऐसा force apply करोगे तो liquid और gases begins to flow, ये flow करना शुरू करेंगे. तो tangential stress जो है it cannot be applied to a fluid. So this is property number 2. Property number 3. Fluid has no definite shape of its own. Liquids and gases का shape नहीं होता है. They do not have definite shape of their own. Instead, they take the shape of the container या vessel. तो जिस वेसल के अंदर आप लिक्विड को फिल करोगे या गैस को फिल करोगे, they will take shape of the vessel. तो fluid takes the shape of the vessel. Therefore, we say fluid has no modulus of rigidity. Modulus of rigidity is a rigidity of shape. ये जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका सिंबल ईटा होता है, ये होता है शेप इलास्टिसिटी. But since fluid do not have definite shape, they do not have modulus of rigidity. So eta is 0. Eta is a symbol of modulus of rigidity. So eta होता है 0 for fluids. And characteristic number 4, fluid can exert, का मतलब fluid can apply or they can withstand a force in a direction perpendicular to the surface. So we can apply force on the fluid perpendicular to the direction of their surface. Liquid and gases को हम लोग force apply कर सकते हैं, but वो force कैसे होगा? Perpendicular to the surface. As a result, fluid can possess bulk modulus of elasticity. तो fluid में bulk modulus of elasticity possible है, but modulus of rigidity possible नहीं है. तो ये होंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड. Characteristics of ideal fluids. Now we discuss characteristics of ideal fluids. But remember, ideal fluid does not exist. का मतलब जितने भी fluids हम लोग स्टडी करेंगे वो real fluids होंगे. And real fluids will not obey these characteristics. अभी जो हम लोग characteristics स्टडी करेंगे वो सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए होंगे और आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट. But ideal fluid is supposed to obey these characteristics. But the fluid in nature or the fluids that we study are the real fluids. और real fluids इन characteristics को obey नहीं करेंगे. So let us study characteristics of ideal fluid. Number 1, ideal fluid is incompressible. Ideal fluid is incompressible. It cannot be compressed. Ideal fluid को हम लोग compress नहीं कर पाएंगे. And since ideal fluid is incompressible, its density will always remain constant. Density of ideal fluid will remain constant because density का formula होता है mass upon volume. तो density rho is m upon v, mass upon volume. Now since ideal fluid is incompressible, its volume will remain constant because उसको हम लोग compress नहीं कर पा रहे, तो मतलब उसका volume ना तो increase होगा ना तो decrease होगा. तो ideal fluid का volume constant होगा, mass तो constant होगा ही. So since mass and volume both are constant, density will also remain constant. So ideal fluid have constant density. Characteristic number 2, its flow is irrotational. Ideal fluid का जो flow होगा वो irrotational होगा. Irrotational flow का मतलब flow of ideal fluid will be smooth and there is no turbulences in the flow.
फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक आइडियल फ्लूइड का फ्लो है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है. फ्लूइड कैन बी सपोज टू बी मेड ऑफ लेयर्स. फ्लूइड को हम लोग लेयर्स में डिवाइड करेंगे एंड दीज लेयर्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर. तो फ्लूइड को हम लोग नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड करेंगे और ये लेयर्स होंगे वन अबव द अदर. तो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो इररोटेशनल होगा. इट इज स्मूथ एंड सिस्टमैटिक. इसमें टर्बुलेंस नहीं होंगे. टर्बुलेंस का मतलब ये रैंडमली फ्लो नहीं करेगा. तो सच अ फ्लो इज स्मूथ फ्लो, इट इज इररोटेशनल. तो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होगा ऐसे स्मूथ होगा, सिस्टमैटिक होगा, उसमें टर्बुलेंसेस नहीं होंगे. टर्बुलेंस का मतलब डिस्टर्बेंसेस. तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्लूइड is its flow is irrotational. का मतलब flow of ideal fluid is smooth and there are no turbulences in the flow. Characteristic number 3, it is non-viscous. Ideal fluid is non-viscous. And what is viscous? Viscous का मतलब viscosity and viscosity का मतलब fluid friction. तो फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस का मतलब देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड. फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं उनमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है. बट ये आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है. रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होगा. विस्कोसिटी का मतलब इंटरनल फ्रिक्शन. तो इन अ रियल फ्लूइड देयर इज विस्कोसिटी, देयर इज फ्रिक्शन. बट ये आइडियल फ्लूइड है. आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होता है. देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो. का मतलब फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं. और विस्कोसिटी के बारे में हमको डिस्कशन करना है इस चैप्टर में. So in the later half of this chapter, we'll be discussing about viscosity also. But viscosity का मतलब friction in fluids. But ideal fluid में viscosity नहीं होता है. तो we say it is non-viscous. Characteristic number 4, its flow is steady. Ideal fluid का जो flow होगा वो एकदम steady flow होगा. तो this is flow of ideal fluid. इसके जो लेयर्स होंगे ये लेयर ऐसे सिस्टमैटिक एंड स्मूथली फ्लो करेंगे. एंड इन आइडियल फ्लूइड वेलोसिटी एट ईच पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन टाइम. तो इफ आई कंसीडर पॉइंट ए, इफ आई कंसीडर पॉइंट बी, इफ आई कंसीडर पॉइंट सी, तो इन आइडियल फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी विल रिमेन कांस्टेंट. So in ideal fluid, velocity at every point will remain constant with time. So we say ideal fluid का flow जो है वो steady होता है. Steady flow का मतलब velocity at each and every point will remain constant. For example, VA equals to VB is equal to VC. So these are the characteristics of ideal fluid. But real fluid will not obey these characteristics. These are the characteristics possessed by ideal fluid, but ideal fluid does not exist. Mechanical properties of fluids, ये जो चैप्टर का नाम है. तो इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है? फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. स्टडी ऑफ फ्लूइड्स को हम लोग बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एंड फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस. तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी होगा उसके दो पार्ट होंगे. देयर आर 2 पार्ट्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स. पार्ट 1 इज फ्लूइड स्टैटिक्स एंड पार्ट 2 इज फ्लूइड डायनेमिक्स. तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करेंगे. पहला जो पार्ट होगा, इस चैप्टर का जो पहला पार्ट होगा वो होगा स्टडी ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स
और इस चैप्टर का जो सेकेंड हाफ होगा वो होगा स्टडी ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, एंड डायनेमिक का मतलब इन मोशन। डायनेमिक्स वर्ड का मतलब इन मोशन। तो व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक्स? तो फ्लूइड स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ study of fluids at rest, and fluid statics is also called hydrostatics। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें फ्लूइड मूव नहीं करेगा, उसमें फ्लूइड रेस्ट पे होगा, एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट होगा फ्लूइड स्टैटिक्स। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है वो है स्टडी ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड सेकेंड पार्ट होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। What is fluid dynamics? So fluid dynamics is the branch of physics that deals with study of fluid in motion। Fluid dynamics में study होगा fluid in motion का, and fluid dynamics is also called hydrodynamics। तो इस चैप्टर का जो सेकेंड हाफ होगा उसमें फ्लूइड मोशन में होगा, एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हमको इस चैप्टर को दो पार्ट में स्टडी करना है। पहला पार्ट होगा फ्लूइड स्टैटिक्स और सेकंड पार्ट होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ऐसे हम लोग दो पार्ट में इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट और फोर्स exerted by a liquid, thrust or force exerted by a liquid। तो when a liquid is enclosed in a container, ये एक कंटेनर है, ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर लिक्विड को हमने फिल किया है। Let us take example of water, and this water is at rest। So when a liquid is taken in a container, liquid will exert force on the surface of the container, and force exerted by liquid on surface of the container is called thrust or force। So force exerted by a liquid on any surface in contact with it is called thrust or a force। और इस थ्रस्ट का प्रॉपर्टी क्या होगा? तो लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स, दैट इज थ्रस्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। लिक्विड का जो फोर्स होगा ऑन द कंटेनर ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। लेट अस प्रूव दिस पॉइंट। अगर लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि लिक्विड at rest always exerts a force perpendicular to the surface of the container at every point। We'll prove this statement। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए let us consider liquid taken in a container and liquid is at rest। Now this liquid is exerting force F at any point near the bottom of the container। का मतलब ये जो पॉइंट O है इट इज नियर द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मैंने पॉइंट ओ को थोड़ा ऊपर दिखाया है, बट पॉइंट ओ कहां पे होगा? नियर द बॉटम ऑफ द कंटेनर। याद रखो ये जो पॉइंट ओ होगा इट इज नियर द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने पॉइंट ओ को थोड़ा ऊपर दिखाया। तो लेट एफ बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वाटर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर एट पॉइंट ओ। तो ये जो वाटर है ये पॉइंट ओ पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है विच इज इंक्लाइन। तो ये एफ जो है वो फोर्स है जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर एट पॉइंट ओ। अभी ये जो फोर्स है इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो इफ एफ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम, तो ये जो बॉटम है कंटेनर का जो बॉटम है ये भी लिक्विड को एक रिएक्शन फोर्स देगा, एंड रिएक्शन फोर्स आर विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्शन फोर्स एफ। तो ये जो बॉटम सरफेस का रिएक्शन फोर्स होगा
ये रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओबी और ये रिएक्शन फोर्स एफ के अपोजिट में होगा। ठीक है, तो लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स एफ ऑन द बॉटम सरफेस इन एन इंक्लाइन डायरेक्शन ओए का मतलब ये जो फोर्स है वो ऐसे इंक्लाइन है। द सरफेस ऑल्सो एक्सर्ट्स इक्वल रिएक्शन फोर्स आर टू द वाटर अलोंग ओबी। तो ये जो बॉटम सरफेस है ये रिएक्शन फोर्स आर अप्लाई करेगा टू द वाटर सरफेस। नाउ सिंस एफ इज इंक्लाइन रिएक्शन फोर्स भी इंक्लाइन होगा। तो अभी इस रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। तो वी रिजॉल्व दिस रिएक्शन फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। लेट दिस एंगल विद थीटा। तो रिएक्शन फोर्स का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा डिफाइन करो। तो इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अलोंग ओसी, इट इज टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, and vertical component is along OD, it is perpendicular, it is normal to the liquid surface. तो रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा OC और ये होगा R cos थीटा, एंड नॉर्मल कंपोनेंट होगा OD, ये होगा रिएक्शन का नॉर्मल कंपोनेंट एंड इसका वैल्यू होगा R sin थीटा। तो रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, R cos थीटा एंड R sin थीटा। नाउ लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता है। तो लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स। लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट, कैन नॉट अपोज, रेजिस्ट का मतलब अपोज। तो लिक्विड टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर पाता। इसका मतलब लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसका मतलब लिक्विड नियर पॉइंट O, लिक्विड नियर पॉइंट O शुड बिगिन टू फ्लो अलोंग OC। का मतलब अगर ये फोर्स एक्ट करता, सपोज ये R cos थीटा फोर्स एक्ट करता, तो लिक्विड ऐसे फ्लो करना चाहिए, बट लिक्विड तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में फ्लो नहीं कर रहा बिकॉज लिक्विड इज एट रेस्ट। तो सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, ये जो R cos थीटा कंपोनेंट है ये जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर ये R cos थीटा कंपोनेंट एक्टिव होता तो लिक्विड शुड फ्लो टेंजेंशियली, ऐसे फ्लो करना चाहिए, बट लिक्विड तो रेस्ट में है। इसका मतलब R cos थीटा कंपोनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। इसमें से R जो है वो नॉन जीरो है, रिएक्शन फोर्स जीरो तो नहीं है। तो इफ R इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब cos थीटा हैज टू बी जीरो, तभी तो प्रोडक्ट जीरो होगा। एंड cos थीटा जीरो होने के लिए थीटा हैज टू बी 90 डिग्री। सो दिस थीटा हैज टू बी 90 डिग्री। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स कैसे होगा, नॉर्मल। एंड अगर रिएक्शन फोर्स नॉर्मल है तो ये फोर्स भी कैसे होगा, नॉर्मल। तो दिस प्रूव्स दैट लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द कंटेनर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड एट रेस्ट विल एक्सर्ट थ्रस्ट या फोर्स ऑन द कंटेनर विच इज perpendicular to the surface. So this is concept of thrust या force of a liquid. Fluid pressure या pressure exerted by the fluid. तो normal force का मतलब perpendicular force. तो normal force exerted by the fluid at rest per unit surface area of contact is called fluid pressure. तो pressure is normal force per unit area. Pressure is normal force per unit area का मतलब वो जो force होगा ये perpendicular to the surface होगा। तो fluid pressure is defined as normal force per unit surface area of contact. So if F is the normal force perpendicular to the area A, if F is the normal force exerted on the surface of area A, then pressure acting on this area will be P equals to F upon A. Pressure is force upon area. If force is not distributed uniformly, अगर force का effect uniform नहीं है, तो if force is not distributed uniformly over the given surface,
then pressure will not be uniform, pressure will be different at different points. तो अगर फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, then pressure will be different at different points. So if delta F is a small force acting normally on a small area delta A, if delta F is a small force acting normally on a small area delta A, then pressure will be limit delta A tends to 0, delta F upon delta A. So this is pressure acting over a small area delta A, which we can write as dF upon dA, where dF is a small force acting on a small area dA. Pressure is a scalar quantity. Pressure जो है वो scalar quantity है, जबकि उसके फॉर्मूला में force है, and force is vector quantity. तो even though force is vector quantity, pressure is scalar quantity, because प्रेशर में जो फोर्स होता है उस फोर्स का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, नॉर्मल. तो दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस. तो दिस फोर्स डज नॉट हैव मेनी डायरेक्शन. ये जो फोर्स होगा ये हमेशा नॉर्मल होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस कॉन्टैक्ट. देयरफॉर प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. SI unit of pressure. SI unit of pressure is Newton per meter square. फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, पास्कल को लिखा जाता है PA. सीजीएस सिस्टम में फोर्स होगा डाइन में, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर का सीजीएस यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डायमेंशंस क्या होंगे? तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, एरिया का डायमेंशन L2, तो ये होगा m1 L-1 T-2. तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2. Some other units of pressure which are commonly used. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, या पास्कल, बट देयर आर सम अदर कॉमनली यूज्ड units of pressure also. For example, bar, and 1 bar of pressure is 10⁵ Newton per meter square. तो bar is unit of pressure and 1 bar होता है 10⁵ Newton per meter square. फिर एक और यूनिट है torr, and 1 torr is equal to 1 millimeter of mercury column. 1 torr of pressure is 1 millimeter of mercury column. फिर एक और यूनिट है प्रेशर का, दैट इज एटमॉस्फियर. 1 एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर को लिखा जाता है ATM. एटमॉस्फियर का शॉर्ट फॉर्म ATM. तो 1 एटमॉस्फियर ऑफ प्रेशर या 1 ATM इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 1 एटमॉस्फियर कितना होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, or it is 1.013 into 10⁵ Newton per meter square. So these are some other commonly used units of pressure. So this is concept of fluid pressure. Pressure exerted by liquid column. इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे. Pressure exerted by liquid column. To derive this formula, consider one vessel, a container filled with liquid. Liquid can be water or any other liquid. तो ये एक कंटेनर है, ये एक वेसल है, और इसके अंदर लिक्विड फिल किया है. तो लिक्विड इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर. लिक्विड के बाहर कौन सा मीडियम होगा? एयर. तो कंसीडर वन वेसल फिल्ड विथ लिक्विड, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड. तो ये जो हमने लिक्विड कंसीडर किया है कंटेनर के अंदर, उस लिक्विड का डेंसिटी रो है. नो, इसके बाद एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करो लिक्विड के अंदर ही. तो कंसीडर वन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and of height h.
ये जो इमेजिनरी सिलेंडर होगा ये लिक्विड का ही होगा. सो कंसीडर वन इमेजिनरी सिलेंडर मेड अप ऑफ लिक्विड. इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और उसका हाइट एच होगा. तो ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम होगा, दिस सिलेंड्रिकल कॉलम विल हैव इट्स ओन वेट. ये जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है, इस सिलेंड्रिकल कॉलम का एक वेट होगा एंड दैट वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम का वेट होगा जो एक्टिंग डाउनवर्ड होगा, that cylindrical column will apply force to the bottom of the vessel. तो इस सिलेंडर का वेट विल एक्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये वेट इस वेसल के बॉटम को फोर्स अप्लाई करेगा एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. सो दैट इज व्हाई दिस लिक्विड कॉलम विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल, जो हमको डिराइव करना है. तो पॉइंट नंबर 2, we wish to calculate the pressure exerted by imaginary cylinder of cross-sectional area A and height h inside the vessel. Point number 3, the weight of the liquid column exerts downward thrust, का मतलब downward force on the bottom of the vessel. ये जो cylindrical column है उसका weight एक downward force apply करेगा at the bottom of the vessel. And thus liquid column exerts pressure because force per unit area becomes pressure. So let us now calculate this pressure. Point number 4, weight of the liquid column. ये जो यहां पे लिक्विड का कॉलम बना है, सिलेंड्रिकल कॉलम, इसका हम लोग पहले वेट फाइंड करते हैं. अभी वेट का सिंबल W और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी. वेट का फॉर्मूला m इंटू जी. यहां पे m होगा मास ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर और g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम W इज मास ऑफ द लिक्विड इंटू g. मास ऑफ द लिक्विड कौन सा? मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर. फिर मास को लिखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. नेक्स्ट स्टेप में मास को लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय g. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच. ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है लिक्विड का, उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो वी कैन से वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो देखो मैंने यहां पे वॉल्यूम को लिखा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम इनटू डेंसिटी रो इनटू जी. तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज AH रो जी. वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज AH रो जी एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द वेसल. जो लिक्विड कॉलम का वेट होगा वही फोर्स एक्ट करेगा एट द बॉटम ऑफ द वेसल. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया. यहां पे थ्रस्ट वेट के बराबर होगा, तो थ्रस्ट इज W, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम डिवाइड बाय एरिया. व्हाट इज वेट का फॉर्मूला? AH रो जी. तो वेट का फॉर्मूला AH रो जी डिवाइड बाय A. तो एरिया गेट्स कैंसल आउट एंड प्रेशर का फॉर्मूला बन गया H रो जी. प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? H रो जी. यहां पे H क्या होगा? हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम. रो होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और G होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H. तो लिक्विड कॉलम जिसका हाइट H है, it will exert some pressure at the bottom of the vessel और उसका फॉर्मूला होगा P equals to H rho G. According to this formula, we can conclude that कि pressure is directly proportional to height and pressure is directly proportional to density of the liquid. So pressure exerted by liquid column depends upon height of the liquid column and it also depends upon density.
तो P proportional to H and P proportional to rho. Also एक पॉइंट हमको और नोट करना है कि ये जो फॉर्मूला है P equals to H rho G, it is applicable for liquids as well as gases. ये जो फॉर्मूला है P equals to H rho G, it is equally applicable for liquids and gases. तो if you have a gaseous column, एक समझो गैस का कॉलम है जिसका हाइट h है, तो gaseous column of height h will also apply the same pressure h rho g, पर वहां पे rho होगा डेंसिटी ऑफ गैस. तो ये जो फॉर्मूला है P equals to H rho G, it is applicable for pressure exerted by liquid or gaseous column. So ये हो गया derivation of the formula of pressure exerted by liquid column.